Interglobe Marine won the toss and elected to bowl first. Globe Link West Star Shipping captain won the toss and deciding to field first. सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में पावर्ड बाय पेट्रोमैन। आज के चौथे दिन का 7वां मैच, 7वां मुकाबला शुरू होने जा रहा है। ग्लोबल लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग बनाम इंटर ग्लोब मरीन, जिसके चलते ग्लोबल लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। देखना होगा किस हद तक अपने इस निर्णय पे खरे उतर पाती है। काउंटडाउन शुरू होता हुआ 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज विशाल। And very nicely played here. Just a deft touch on the offside in the backward point region. An interesting group here, Group C. Globe Link West Star Shipping played 3, won 2, lost 1, whereas Interglobe Marine is slightly reversed, played 3, lost 2, won 1. So Interglobe Marine certainly have to win this match to stay in the race of the quarterfinals, whereas if Globe Link West Star Shipping wins this, they will be certainly favorites to go into the quarterfinal stages. Well, there was an appeal here from the bowler from behind the wickets. Don't know what exactly has happened over there. Omkar Desai and Mangesh. And see that the ball was going away from the right-hander. It's very difficult here without a sneakometer sometimes to see whether it's aged or not. Maybe in the next edition we can find the new technology, that sneakometer will be implemented in season 5. Yes, you rightly said, Harish. We have seen many improvisations in the edition by edition. And if we talk about this 4th edition, we can also see the stump make and stump cam. So that is not so far where we can witness, where we can experience the pleasure of having the DRS, including sneakometer and ball tracking area. Yes, and the technology, if it is there, it should be used fully. And I guess the way 10PL governing committee and organizing committee is working forward towards increasing the standards, it won't be surprising here that tennis cricket can see this technology in future course, maybe this year also, and maybe the next season. See, 10PL is having a different standard, different level. They have already set the bar, and I believe that no one can raise that one, because one of the good reason, if I can give you on that, you might have a big cash prize than this. High up in the sky, this time fielder coming underneath it and takes an easy catch. First blood drawn, and the batsman has to take a walk back. The big fish in the hut, Omkar Desai, has been dismissed. Big wicket here. Omkar Desai is a big hitter. We have seen him many a times scoring some big runs. And this ground also is not big enough for his sixes. That was some instances we have seen in the previous encounter. But a big wicket here for Globe Link West Star Shipping. Certainly
considering Globe Link Vestas Shipping, they should not be comfortable that we are going to go through after 2 wins. They have to win this match to be comfortable enough to go into the quarterfinals. Yes, if you can also have a look at the Group C, where Globe Link West Star Shipping standing on the second, and Interglobe Marine, they are standing at the third after having lost 2 matches and won just 1. And if you can have a close watch on the net run rate, it's minus 3.490 for Interglobe Marine, which straight away can give you a vivid picture that they have to win this game. It's a do or die match for them, for Interglobe Marine. You have rightly said that Globe Link West Star Shipping should also keep their intentions tight and should always try to go for the win. Again, ball just climbing a bit on the batsman. The left-hander wanted to play that hook shot, but coming large on him and just play down on the onside for a single. So very good start here given by Vishal Nighot. Always when matches start, whether it is international, whether it is a T20, whether it is an 8 overs game, the first bowler is very crucial. He sets the stone for the entire team to follow. As he builds up the pace, but this time, what a stand and deliver. He dancing down the track, and what a magnificently played it over to the long on region for a 6. Well, you can see the batsman there. I was talking about a bowler setting the pace. Well, the batsman is telling, I will hit the ball face. Yeah, it's never an easy task for any of the batsmen, you know, when you have lost 1 quick wicket in the very first over. Again, you are shifting back your zone into the angry mode and dancing down the track and taking that ball over the line. It's a great job as done by Mangesh Vaiti, because he's a player who can, you know, take their team to some respectable total at any point of moment as long as he survives on the crease. Yeah, but we have still not seen innings of substance here from him. The team requires services of his batting skills at this moment. And if at all he gives them a good start, it's just not about 10, 15. Maybe somewhere more than 25, 30 runs is what is needed from Mangesh at this stage. Yes, Yogesh Chaudhary has come on to give him company playing on just single of 1 ball. Yes, this is the right time that he has to take that opportunity with both of his hands and build up a good knock with Yogesh Chaudhary. Once again, a very good line and length started once again by Nihal Tusamat. He has been very impressive. One of the impressive bowlers that we have seen in this competition. He is certainly among the top 5 medium pace bowlers. Nihal Tusamat. Yes, we were talking about the standards of this tournament, Harish. You might witness a tournament with a bigger cash prize than this, but the standards, the bar of excellent achievements has been set down by 10PL. I don't believe what kind of an effort, you know, Petroman has given, what efforts they have put down to organize such a beautiful event here at Surat. Oh, there's a cross-batted shot. And gets the maximum result. 4 runs this time. Look at the style of Mohammad Rafi. Hit by a batsman. Hit by a batsman. Boundaries and sixes will be hit by the batsman. It's about how you come back from that position and reciprocate that into a good ball. It's not that you have to bowl a loose ball, full toss ball, short balls consistently, and that is called bad bowling. But sometimes the bowler will be hit even in spite of bowling good deliveries, maybe just of short of good length, just like the shot played by the batsman. Yes, from the bowler's point of view,
you will definitely leak out some runs, especially whenever you are bowling in the power play area. But you should be capable of, making a comeback at the right time. Because if you keep losing runs, if you keep leaking runs, then that is not something which your team and your captain wants from you. This is once again a short ball. He was absolutely in no position to play that. The ball here also bounces a bit more, but the effort from Nihal to Samad, you can see that last stride, you can see the effort. That was a nasty blow though. We have also seen a batsman getting injured in the previous match while having a hit on his head. You already seen a bat being broken. That was a Omkar. That's how I feel. So the fastest bowlers we have seen in this competition. Many fast bowlers. Whom you are impressed with? If you talk about me, then for sure I will go with Vishwajit Thakur and Vijay Pavle. They have been very consistent with their pace and line and length because they are the bowlers who have their who have the lots of experience in their bucket and they know how to read the wicket, how to read the batsman's mindset, and they will bowl accordingly every set of games that they play. Yes, they have certainly got experience, but talking about some of the newcomers, I think Irfan Ul Haq is also a very good sensation, along with Javeer. Navneet got good height as well, left arm. So many of the left arm playing in this competition are doing a good enough job. So if you have got height as an advantage, you should also bowling in the good areas. Just because you have got height does not mean you need to bowl it short. Yes, welcome Surat. We, on behalf of the entire Petroman family and 10PL family, we welcome you all on this grand occasion of SkyExchange.net presents 10 Premier League Season 4 powered by Petroman. Yes, you have asked me about my favorite bowler in this tourney. I would definitely want to ask you, how about the batsman who has stole your heart in this tournament? Certainly one of the innings from Jimmy Darbar was excellent one. And he just went after the bowling right from the start till the end. That was a classic batting display. Fardeen Qazi, one of the upcoming talented players. Pablu Patil. So many of the players around played some good knocks. Vishwajit Thakur as well, some wonderful hits. Well, he is a stable cricketer. He has stabled himself in tennis ball cricket, one of the superstars. Many players around have played some good shots in different teams. There's no doubt how the innings has been built up by Jimmy Darbar. What a great knock that he has delivered on that day, on the other day of 69 of just 28 legal deliveries. But the one who has stole my heart is the young sensation who has played a brilliant knock today, who has given a marvelous, phenomenal shots on this ground of Lal Bhai Contractor Stadium. Uzair Sheikh, the young budding talent, he has certainly stole the heart of the entire Surat, of entire India, I would reckon. Yes, I think he has played a wonderful innings, innings that can bring a fruitful result for him in future. Oh, that's a lovely delivery. But having talked about the batsmen, the bowlers, some stunning catches, some wonderful fieldings also we have seen in this tournament. And talking about both these teams, normally marine and shipping go hand in hand. Without shipping there is no marine, and without marine there is no shipping. What a great combination that you have got. This time outside the off stump, he shuffled down towards the off stump, wanted to go for a biggie. There wasn't a good connection, can only be concede one run on that occasion. Yes, they are trying their heart out, but the bowling was also pretty decent. Prathamesh Gosavi, once again, I guess 70-75% of the bowlers are medium pace left arm, medium pace bowlers we have seen. I always say that in my commentary box in this 10PL edition. Once again going for the cross batted heave. This time no connection. Just 21 on the board so far. Third over in progress. Yes, we have seen a bunch of left arm pacers in this tournament when it compared to the right hander one.
and that could be one reason for low scoring totals here, Harish, because whenever the right-hander batsmen are facing the left-arm pacers, there will be a natural off swing for them, and that might be the reason which is troubling them out. Oh, what a hit! Humongous strike! Colossal hit from Mangesh. Suddenly it has awakened everyone here. Everyone thought a little while we'll have taken a nap. And no, after that shot, everyone is awake. What a great shot by Mangesh. Stand and deliver towards the big screen. What a shot. He was right in a position to dispatch that. And he did it in the right way, in the right direction. Well, they are watching live here and also watching on 10PL cricket and Prince movies on their mobile phones. Yes, exactly. I don't think that you need mobile phones when you are here at the stadium. So please turn down your mobile phones and have a pack of popcorn and fasten your seatbelts. Enjoy the moment. Enjoy this lovely evening. Welcome you all the spectators here. Well, sometimes it happens many a times when I was watching a live match, international match in Goa. I was also watching on mobile. The reason is you want to see how different it is, what is the feel around, how are the lights, how differently it seems. स्वागत है सूरत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. देखिए नन्हे खिलाड़ी फ्यूचर है हिंदुस्तान का. Once again going for the cross batted, this time no connection. Nihal Tusamad has been told to continue his bowling. Done a very good job so far for his team. 27, in fact 28 for 1 in 3.1. जी हाँ, दर्शकों से काफी कुछ भरा है आज लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम. और क्यों ना हो, ये हफ्ते की शाम है, ये सैटरडे की नाइट है और आप पूरा इसका आनंद लेने आए हैं. बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से सभी सूरत के दर्शकों का, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इस 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण को पूरा एंजॉय करने आए हैं. Well, we have to wait for umpire signal. There it comes. The duck is out. Well, once again, very nicely bowled. Very good bowler, Nihal Tusamad. Globe Link West are shipping will be very happy with his performance. He has taken wickets at the time and it is required, and if at all he has not taken wickets, then he has kept the batsman in check. जी हाँ, यहाँ से कमर कसनी होगी ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग के गेंदबाजों को, क्योंकि जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही आसानी के साथ वहां पर मंगेश रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं. एक बार फिर से हवाई यात्रा पे भेजा जरूर है गेंद को, लेकिन वहां पर अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत ही उम्दा कैच लेकर नो बॉल का इशारा अंपायर का. रेड अलर्ट आता हुआ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में. उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ एक मौका बना था, एक चांस बना था वहां पर, और क्या ही कहने उस कैच के. ऐसी गलतियां, ऐसे मौके बार बार नहीं आते. Well, this is a crime. You can't bowl a no ball. How many times we have seen a wicket being taken off the no ball and the free hit? Nihal Tusamad will be cursing himself. What have I done? या बिल्कुल फ्री हिट मिलेगी, एक और मौका बनेगा बल्लेबाज के लिए रनों को स्कोर करने का. बड़ा शॉट हवा से बातें करती हुई, इस बार जाएगी गेंद 6 रन के लिए आकार चैन के बोर्ड के पीछे लैंड करती हुई. And that's the reason why I should not bowl a no ball.
देखिए हरीश, ये तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि आपके नो बॉल पर आपको विकेट मिली थी, वो विकेट भी बच गई और इस बार पर इस गेंद पर जो छक्का जड़ा है इस बल्लेबाज ने, Adding insult to injury of the bowler, but only he has to blame himself, no one else. So very nicely bowled. Well, that was like a double jackpot here for the batsman. A catch was taken. Finally, it was called a no ball, and then he gets a delivery right in the slot and he hits away for a magnificent six. यहाँ वहाँ पर आज से मुकाबले की गिरफ्त कमजोर होती हुई ग्लोबल लिंक्वेस्ट स्टार शिपिंग के, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, ताबड़तोड़ कमर तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर मंगेश वाइथी की ओर से। फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एक बार योगेश चौधरी थे स्ट्राइक पर, पूरी तरीके से बीट हुए। हालांकि इतनी नो बॉल्स या फिर एक्स्ट्रास करते नहीं है निहाल तुसामद, हमने देखा है इनके मैचेस में बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। आज सफलता भी नहीं मिली और काफी महंगे साबित हुए हैं अभी तक। A very good partnership here. You can see 37 runs coming on the screens from between Mangesh and Yogesh. But Mangesh has done the bulk of the scoring. Well, take that on the screens. These sixes are getting bigger and bigger. Going, gone. स्टैंड एंड डिलीवर्ड। क्या ही कहने इस बल्लेबाज के। 6 रन के साथ चौथे ओवर को किया समाप्त। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 45, 1 विकेट के नुकसान पर, और समय हो चुका है आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। Well, I think you wanted to give that point. I'll finish that. It will be Akar Chand strategic time out. And just like a famous saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. But here on this ground, beauty lies in the eyes of cameraman. Thank you, Arish, and thank you. Congratulations, Pepsi. I love you. गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी का YouTube के माध्यम से। जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी को बहुत सारा प्यार। SkyExchange.net 10BL सीजन 4 के इस शानदार शनिवार में आपका स्वागत है। स्कोर हो चला है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 45 पर 1। बहुत ही किफायती बैटिंग करते हुए मंगेश वैती और उनके साथ योगेश चौधरी। देखिए अभिजीत, मंगेश वैती पूरे 10PL में पहली मर्तबा अपने बल्लेबाजी का जादू निखेर रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने इस तरह की बल्लेबाजी नहीं की जो अब कर रहे हैं। बड़ा नाम है ओपन क्रिकेट में। गेंदबाजी के लिए आसिफ शेख को बुलाया गया है। पहली गेंद कंट्रोल कट शॉट था, हालांकि एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। गेंद चली गई कवर्स में, 1 रन आता हुआ स्कोर में। इंटर ग्लोब मरीन का स्कोर 46 रन 1 विकेट। यस, लास्ट विकेट वाज अ बिग विकेट ऑफ ओमकार देसाई और उसके बाद मंगेश वैती 3 सिक्सेस लगा चुके हैं इस मुकाबले में। आप देख सकते हैं जायंट स्क्रीन पर इवनिंग वॉक का मजा लेते हुए इस लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम का
परम आनंद लेते हुए चेयरपर्सन और टेनिस क्रिकेट दुनिया के मसीहा जिस तरह से हरीश सर कहते हैं, मिस्टर आरिफ खान सर। बाउंसर वाइड घोषित के अंपायर ने, रीजन ये था कि लगभग बैट्समैन के रीच के बाहर थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। ये देखिए बढ़िया निर्णय अंपायर का, ज्यादा ऊंचा बाउंसर था। बोलिंग करें आसिफ शेख, ये आप देख सकते हैं मैन बिहाइंड शो। इस मरतबा हुक कर दिया है, खाली क्षेत्र है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। खरबूजे को देख के तरबूजा भी अब रंग बदल रहा है। और क्या बेहतरीन शॉट है, योगेश बहुत ही स्टाइलिश बैटर है और जिस तरह से ताबड़तोड़ शुरुआत की है, अच्छे संकेत है टीम इंटरग्लोब मरीन के लिए। देखिए दोस्तों, अभिजीत पवार न सिर्फ कमेंटेटर हैं बल्कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बड़ा चेहरा है और पवार जैसे कमेंट्री बॉक्स में आए, पावरफुल बल्लेबाजी हो रही, बढ़िया स्ट्रोक, हुक किया था गेंद को, गेंद की लाइन के अंदर आकर। आसिफ शेख लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा पुल कर दिया है, गेंद पीछे निकल गई है, एक और चौका। क्या बल्लेबाजी हो रही है। अभिजीत, आपको लगता नहीं कि काउंटर अटैक हो रहा है, 2 धारी तलवार चल रही है और जब 2 धारी तलवार चलती है तो पीछे जाता है गेंदबाज, आगे खाई पीछे कुआं। आसिफ शेख महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। इस मरतबा एज और बदला पूरा, बैट्समैन आउट, दूर से खेला था, एलिवेशन नहीं बना, आउट होके चले गए योगेश चौधरी। ये much needed wicket for Globe Link West Star Shipping, बहुत इंपॉर्टेंट था ये विकेट। योगेश चौधरी जिस तरह से उन्होंने एक्सीलरेट करने की कोशिश थी, आसिफ ने हिसाब किया बराबर और बबलू पाटिल इनका एक आसान सा कैच पूरा होता हुआ। लेकिन अगर हम देखते हैं अभिजीत, तो स्कोर बहुत अच्छा बना लिया है इंटर ग्लोब मरीन ने, क्योंकि 70 प्लस या 80 के करीब का जो स्कोर रहता है वो देर रात चेसिंग में बहुत मुश्किल होता है। क्या समय है, क्या सीन है लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में, दूधिया रोशनी है, इसी रोशनी मानो आप पड़ी हुई सुई को उठा लें। और ये देखिए सूरत क्रिकेट का एक बड़ा नाम स्क्रीन पर अब है, टेनिस क्रिकेट के मसीहा मिस्टर अब्दुल लतीफ खान साहब और पेट्रोमैन इवेंट्स मैनेजमेंट, 10PL की सोच, हैशटैग गली से स्टेडियम तक, इन सारे प्लेयर्स को जो लेकर आए, इन सारे खिलाड़ियों का जो सपना पूरा किया है, एक और एक ही कारण है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे थे, मिस्टर आरिफ खान और साथ में 10PL की रोशनी तनवीर भाई। खेल की शुरुआत होती भी आसिफ शेख, इस मरतबा गेंद को छोड़ दिया, वहां पर रन लेने की कोशिश और पूरा करते हुए विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए थे। 1 रन स्कोर में और आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रनों पे पहुंचा है इंटर ग्लोब मरीन का। मौसम बहुत ही सुहाना, हर कोई है 10PL का दीवाना। बहुत खूबसूरत समा, ये शाम ऐतिहासिक शाम है 10PL की। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया कवर पॉइंट पे, 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 57 रन, 2 विकेट। मंगेश वैती बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 32 पे खेल रहे हैं और नए बैट्समैन सिरियास कदम ने अब तक बना 1 रन बना रखा है, कोई भी नहीं रन बना।
ये देखिए जबरदस्त कैमरा वर्क। ये घास दिखाई जा रही है, अब हल्का सा उस पे शायबा हो रहा है शबनम का, ओस का। और वैसे भी सूरत में 10 PL भी चल रहा है और अगर अतराफ में हम देखें तो फॉग भी चल रहा है। स्वागत है आप सभी का इस दौरे तबाही में, इस दौरे कशाकश में मुश्किलें संभल जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाज़ा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। लेकिन आज और कल की रात, इस तारीखी रात को कौन छोड़ के जाएगा। पेप्सी मॉर्फीज हमारे बेवरेज पार्टनर हैं 10 PL के। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए इस एंड से अभिजीत दूधे को लगाया गया है। पहली गेंद खींच के मारा है, फुल पावरफुल 6 रन। क्या गजब का शॉट है। स्वागत किया है अभिजीत दुबे का। लेकिन अभिजीत ये बताइए कि इतनी छोटी गेंद जब बल्लेबाज को नजर आती है तो उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है। कल आपने कहा था ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, आपके बल्ले में चमक चाहिए। देखिए चमकदार, शानदार, जानदार पावर पैक स्ट्रोक 6 रन। मंगेश वैद्य का अंदाज वही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अभिजीत दुबे, वैद्य को इस टाइम स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई। इस बीच 2 रन बना लिए। क्या लगता है अभिजीत मंगेश वैद्य क्या 10 PL का दूसरा अर्धशतक बनाएंगे? 17 गेंदों पे 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक बनाने वाले एक ही। और अभिजीत जिमी दरबार ने पहला अर्धशतक लगाया, उसके बाद अभिजीत। और अभिजीत दुबे ने भी अर्धशतक लगाया है। इस मर्तबा रिवर्स शॉट बच गए, वहां पर बल्ले को टकराने भर के बाद गेंद गई थी, विकेट कीपर कैच नहीं कर पाए। या जिस तरह से अभिजीत दूधे पहली गेंद पर 6, उसके बाद 2 रन और तीसरी गेंद रही डॉट। विकेट कीपर पप्पू रामगुड़े, इन्होंने जरूर एक अच्छी कोशिश की है। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वो होगी घरेलू टीम वलसाड स्ट्राइकर्स और एबीज यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला। दोनों कप्तान तैयार रहिएगा मिड इनिंग्स में टॉस सेरेमनी के लिए। एबी यूपी वॉरियर के लिए करोड़ मरों का मैच है, कामरान खान के लिए। इस मरतबा स्टम्प्स को कवर किया, हल्के हाथों से पुश किया। पुश करो और खुश रहो, 1 रन। या इसी सिंगल के साथ अब रनों का ये सिलसिला 66 यानी कि 66 for 2। अब 20 ओवर की 2 गेंदें शेष हैं। ये हमारे पेट्रोमैन इवेंट्स के सभी योद्धा जो लगातार पिछले 1.5 सालों से इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। अभिजीत लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प, इस मरतबा साइड आर्म गेंद थी और ये देखिए अंपायर का इशारा वाइड। ऐसा खड़ा रहते मोहम्मद रफ़ी मानो इंग्लैंड के किसी चौराहे पे उनका स्टैचू रखा गया हो। बहुत बढ़िया अंपायरिंग रही पूरे अंपायरिंग पैनल की, और स्पेशली अंपायर मोहम्मद रफ़ी ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। या और इसके लिए जाने जाते हैं अपने एक स्टाइलिश तरीके डिसीजन देने के लिए अभिजीत। बहुत अच्छी गेंद अभिजीत द्वारा। जरूर श्रेयस कदम, जिनके कदम धीरे धीरे करके क्यों ना हो एक बार इसके रूप में ये रन आएगा, लेकिन जिस तरह से श्रेयस कदम स्ट्राइक रोटेट किया, बहुत ही समझदारी दिखाई। इनफॉर्म बैटर, 19 गेंदों पर 41 रन ठोकने वाले खिलाड़ी मंगेश को स्ट्राइक देना इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, पिछले मैच में 22 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली थी श्रेयस कदम ने, लेकिन इस वक्त
फॉर्म में चल रहे हैं मंगेश वैती। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न किया, विकेट एरिया, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। इससे बढ़कर क्रिकेट कुछ नहीं हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट खेलते हुए इन 2 रन से 43 रनों पे पहुंचे हैं इस वक्त 20 गेंदों में मंगेश वैती, और कुल स्कोर 70 रन 6 ओवर के बाद। ऑन स्क्रीन हम देख सकते हैं कामरान तैयार है अगले मुकाबले के लिए। उनके साथ एक और हमारे योद्धा आसिफ द डेविल इस जाइंट स्क्रीन पर नजर आते हुए, लेकिन नजरें होंगी श्रेयस कदम की बल्लेबाजी पर। एक ऐसा खिलाड़ी मंगेश वैती 43 20 बॉल्स में 4 सिक्सेस उन्होंने ठोके हैं, 215 का स्ट्राइक रेट। निगाह इस खिलाड़ी पर होगी बिकॉज गली से स्टेडियम में ये जो हैशटैग चल रहा है, सोच चल रही है, उस वक्त इस खिलाड़ी को लेकर आए थे शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में, और तब इसी खिलाड़ी ने तबाही मचाई थी शारजा के स्टेडियम में, जिन्होंने अपने कदम ऊंचाइयों की ओर रखे और कर्नल जाहिद जैसे पाकिस्तानी गेंदबाजों को ताबड़तोड़ सिक्सेस मारे थे। यस, इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में वाइडिश मिड विकेट पे 1 रन। सीरियस कदम का खाता खुलता हुआ 1 रन से कुल स्कोर पहुंचा 71 रन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इंटर ग्लोब मरीन सामने ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार। इस मरतबा फ्लैशी स्क्वायर कट, क्या शॉट है, जाजिबुल नजर, भरपूर स्क्वायर कट मंगेश वैती के बल्ले से 4 रन। यार आज सूरत के इस स्टेडियम में बहुत शांत लोग हैं, हर चौके पर तालियां और सीटियां कम आ रही है, ऐसा क्यों? शानदार ये शनिवार है, जानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं मंगेश वैती अपने हाफ सेंचुरी के नजदीक आते हुए। अब तालियां और सीटियां सुनाई दे रही है, मन में जो बात है वो मत भूलिए, तालियां और सीटियां सुनाई दे रही है। 47 पे पहुंचे हैं, अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए मंगेश वैती। लगाते हैं तो 10 PL में ये तीसरा अर्धशतक रहेगा, और 10 PL में मात्र एक हैट्रिक गेंदबाज स्विंग के सुल्तान खान। अभिजीत दूधे काफी महंगे साबित हुए थे पिछले ओवर में। अब आसिफ शेख की खबर ली जा रही है, उछाल दिया है, गेंद आसमान में, फील्डर नीचे। ओ माय गॉड, बहुत ही मुश्किल अवसर था, हाफ एंड टफ चांस, जीवन दान मिला है। देखिए अभिजीत, रक्तदान, कन्यादान ये बहुत नेक काम होते हैं, लेकिन बल्लेबाज को जीवन दान नहीं देना चाहिए, ये टीम के लिए काफी घातक होता है। 49 पे पहुंचे हैं, बच गए वहां पर। जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। ये देखिए, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। ये आपके टीवी मॉनिटर पे टेनिस क्रिकेट के मसीहा अब्दुल लतीफ या आरिफ खान साहब। आसिफ शेख फिर कट करने की कोशिश, पीछा किया था, थोड़ा अपने आप से नाराज है वहां पर, अपने स्ट्रोक को बता रहे हैं, लेकिन भूल गए कि सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। 49 पे खेल रहे हैं, क्या तीसरा अर्धशतक हम देखने जा रहे हैं 10 PL में। 77 रन 2 विकेट। इस मरतबा क्रैकिंग स्ट्रोक, 1 रन पूरा, और इसके साथ ही मंगेश वैती का अर्धशतक। बिग एंड मंगेश, आपको बल्ला दिखाना है सभी को। वेल डन, व्हाट इनिंग, इनक्रेडिबल, अमेजिंग फ्रॉम मंगेश वैती। 24 बॉल 50 रन। वेल डन मंगेश के लिए तालियां बजनी चाहिए। 50 रन पूरे, इस सीजन का दूसरी ये हाफ सेंचुरी। मंगेश कह रहा है, मैं हूं ना, मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा टीम इंटरग्लोब मरीन के लिए, आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हौसले को सलाम है मंगेश के। बिल्कुल, जरूरत भी थी
इस स्थिति में उनके इनिंग की। फोर्स किया है, ओ माय गॉड, आउट ऑफ ग्राउंड, 6 रन। क्या शॉट है, भरपूर ताकत। ओनली सीरियस कदम कैन डू इट। ये सिर्फ सीरियस कदम ही कर सकते हैं। जिनके हौसलों के कदम लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में अब बढ़ चुके हैं, वो है श्रेयस कदम। इनके लिए तालियां होंगी, सिक्सेस की बौछारें होंगी। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में विश्व के सबसे तेज टेनिस गेंदबाज जाहिर कालिया को, जिन्होंने 6 लगाया था, छपरा तोड़ सिक्सर था श्रेयस का, आज उन्होंने लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में अपने हौसले बुलंद किए। वेल डन श्रेयस, वी आर प्राउड ऑफ यू। क्या बल्लेबाजी हो रही है। ओनली सीरियस कदम कैन डू इट। क्या शॉट खेला था, बैकफुट पे जाके फोर्स किया था, 6 रन। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 84 रन, 7 ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी में प्रथमेश आए, पहली गेंद जड़ में थी, छोटी बैकलिप से गेंद को मिड ऑफ पे खेला, 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया, पिंच हिटर और पावर हिटर सीरियस कदम के लिए। ये जब भी मारते हैं ना अभिजीत, तो बहुत ताकत से मारते हैं। आरिफ भाई अपने तमाम साथियों के साथ और ये भी यूपी वॉरियर के खिलाड़ी। देखना है क्या कुछ हुआ है। ये अपना अंदाज है अंपायर मोहम्मद रफी का। देखिए उन्होंने बताया, बाकायदा ब्रश होके गई है गेंद। इसे कहते हैं अंपायरिंग, और इसे कहते हैं आंखों में सुरमा डाल के अंपायरिंग करना। एक्सीलेंट वर्क फ्रॉम अंपायरिंग पैनल। प्रथमेश हेलीकॉप्टर उड़ाया है, पीछे खिलाड़ी है, थोड़ा फंबल किया है, 2 रन पूरे किए कदम ने। कदम के कदम आगे बढ़ते हुए टीम का स्कोर इंटर ग्लोब मरीन का 87 रन, 87 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये प्रथमेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, मंगेश और श्रेयस को कोई मौका नहीं दिया है। लो फुल टॉस डिलीवर मिस टाइम का इस शॉट को श्रेयस ने, 2 रन की मांग होगी, लेकिन मंगेश ने कहा आखिरी के कुछ गेंदें मैं खेलूंगा, बचे हुए इन गेंदों पर एक बड़ा हिट आना बहुत लाजमी रहेगा। इस मुकाम पर टीम का स्कोर हो चला है 88 पर, यानी कि 88 for 2 balls to go in this last over। एक बड़ा शॉट आएगा तो फिर स्कोर और सरदर्द बन जाएगा सामने वाली टीम के लिए। फ्लिक कर दिया है, एफर्टलेस शॉट है, 6 रन, शॉट ऑफ इवनिंग। हो क्या शॉट खेला है। मैं तो कहता हूं ये पिछले 4 दिनों में से सबसे बेहतरीन शॉट है। जरूर रिप्ले तो इसके पहले वाला गेंद पर आया था, लेकिन मंगेश के इस कलाइयों का इंश्योरेंस करा देना चाहिए। क्या कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल। यह शॉट ऑफ टूर्नामेंट, एक और धमाकेदार शॉट, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ स्कोर में, 2 की कॉल है और देखना है क्या कुछ हुआ। यस इज आउट। तो कुल मिलाकर रन बनाए इंटर ग्लोब मरीन ने। अपने निर्धारित 8 ओवर में 95 रन और 96 रनों की चुनौती रखी है। यहाँ पर टीम ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग के सामने। इस तरह के लक्ष्य ऐसा नहीं कि वो पूरे नहीं होते। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए चलते हैं
10 PL टॉस बॉक्स में, जहां पर बहुत ही मशहूर आवाज़ हैदराबाद तड़का वो सब मौजूद है। एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. I love you. चेक। या SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त होस्ट कमेंटेटर सैयद रहमत हुसैन, पॉपुलरली नोन एज उसामा। या चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉस के लिए, जो कि आज के चौथे दिन का 8वें मैच का टॉस होने जा रहा है। मैं यहाँ पर दोनों ही टीमों के कप्तानों से आमंत्रित करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए वलसाड स्ट्राइकर्स के कप्तान मयूर दरबार, और साथ में मेरे जुड़ेंगे ABUP's वॉरियर के वेल नोन पर्सनालिटी द IPL प्लेयर कामरान खान। बहुत बहुत आइए, साथ ही साथ मैं दावत देना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा तुषार जी को, जो कि हमारे साथ बने रहेंगे, इस टॉस के मुख्य अतिथि रहेंगे। देखिए हमारे लिए एक स्पेशल कॉइन तैयार की गई है NPL के लिए। पेट्रोमेंट इज द कॉल एंड 10 PL इट इज। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो मयूर, आपने टॉस जीता है। क्या करें? पहले बैटिंग। ये खास वजह है बैटिंग फर्स्ट करने की? लोग ऑलरेडी 3 मैच हार चुके हैं, लेकिन हमारी टीम ने भी ऐसा सोचा है कि हमारा ऑनर को भी कुछ रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, थोड़ा सा स्कोर बनाएंगे, क्योंकि अभी सब टीमों का हम पे ज़्यादा वो है कि अगर हम लोग मैच जीतते हैं तो ये लोग बाहर हो जाएंगे, वो लोग जीतते हैं तो दूसरी टीम बाहर हो जाएगी। ऐसा है, तो इसीलिए हम लोग पहले बैटिंग करेंगे। देखिए निश्चित रूप से आप फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे इस मैच में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जानना चाहूँगा कि आपने थोड़ा सा निराश जरूर किया, 3 मैचेस हारे हैं, लेकिन ऐसा क्या एक कैटेगरी रही है जिसमें आपकी टीम थोड़ी सी कमज़ोर नजर आई है? हमारा सबसे मजबूत जो था वो बैटिंग था, लेकिन सभी बैट्समैन ने बैटिंग में ही फेल हो गए, इसीलिए सबको निराश होना पड़ा। चलिए ऑल द बेस्ट लास्ट मैच के लिए। मैं साथ ही साथ कामरान खान से पूछना चाहूँगा, अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? बैटिंग हम भी करते हैं, बैटिंग हम भी करते हैं।
कोई खास वजह थी बैटिंग करने की पहले? हमारा सब कुछ सही चल रहा है और बैटिंग करने में थोड़ा क्या है, बाद में जब हम सेकेंड इनिंग बैटिंग करते हैं थोड़ा सा प्रेशर रहता है, चेसिंग में हमेशा प्रेशर रहता है, तो हम लोग वो नहीं चाह रहे थे, हमने बैटिंग करते हैं। 2 मैचेस आप लोग जीते हैं और 2 मैचेस आपके बाकी हैं। आप निश्चित रूप से मैचेस तो देख ही रहे होंगे, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि विकेट थोड़ा सा बिहेव कर रही है चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से? एग्जैक्टली पहले जैसा खेल रहा था, पहले एक पूरी जो मैच खेला विकेट खेला उससे काफ़ी बेहतर अभी चल रहा है विकेट, और अभी तो थोड़े रन भी बन रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि हम किस कौन से प्लान से हम बॉल डाल रहे हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। बॉलिंग यूनिट बहुत ही जबरदस्त है आपका। वलसाड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, क्या एक टारगेट सेट करे हैं उनको वहां तक रोकने के लिए? हमारा ये टारगेट रहेगा 55-60 तक लास्ट है इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ऑल द वेरी बेस्ट इस मैच के लिए। वेल दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, इट्स वलसाड स्ट्राइकर्स हु हैव वॉन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। धन्यवाद औसम। अब यहाँ पे लक्ष्य रखा है कुल मिलाकर लक्ष्य बहुत ही बड़ा रखा है। यहाँ पर 96 रनों की चुनौती है इस वक्त मैच को जीतने के लिए ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग के सामने। And also I would like to take this opportunity to welcome AB's UP Warriors owner himself, Asif Sheikh Saab, to please come forward and join us here. He will be felicitated on this occasion for being a part of 10 Premier League Season 4. And also I would like to invite Arif Khan Sahab, the chairman of 10 Premier League, who has taken the tennis ball cricket to a new heights, who has given a new face to tennis ball cricket. पहली गेंद तुषार रणदीवे की। Thank you so much sir for joining here. So all right, we are here. Arif Khan Saab, the chairman of 10 Premier League, will be presenting a memento to Mr. Asif Sheikh Saab, who is the owner of AB's UP Warrior. आसिफ शेख साहब, आपसे जानना चाहूंगा 10 प्रीमियर लीग का ये सफर कैसा रहा है आपका, और ऐसे इम्प्रोवाइजेशन जो आप देख रहे हैं 10 प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण में, ये कैसे लग रहे हैं आपको? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आरिफ भाई ने मौका दिया यहाँ पे खेलने का हमारी टीम को, और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा नहीं कि हम लोग कोई टेनिस मैच या टेनिस टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और इतना अच्छा इंतज़ाम मैंने अब तक किसी टूर्नामेंट में नहीं देखा। यानी प्लेयर्स लोग के लिए काफ़ी खुशी और प्राउड मोमेंट है उन लोगों के लिए ये टूर्नामेंट जो खेल रहे हैं, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके एडिशन में और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यहाँ बिल्कुल वो तो देखेंगे ही आप, क्योंकि 3 सीजन जो हुए थे शारजाह में, उसके हिसाब से आज यहाँ पर देखें तो आप 22 कैमरों के साथ जो सेटअप किया है, जो स्पॉन्सर्स ने यहाँ पर आरिफ भाई का साथ दिया है, वो उनकी मेहनत है, पेट्रोमैन की और आरिफ भाई की पूरी मेहनत है। लेकिन आपकी टीम से भी जानना चाहूँगा, जीत यहाँ पर जीते हैं, कामरान खान आपके कप्तान हैं, आगे इस मैच को, इस टूर्नामेंट को कैसा देख रहे हैं आप? अभी हमारे 2 मैचेस बाकी है, हमें दोनों जीतना है और जीत के ग्रुप को टॉप करना है और रन रेट भी अच्छा रखना है। तो अभी मैच बाय मैच हम लोग जाएंगे, पहला दूसरा, पहले मैच को फोकस करेंगे, उसके बाद आगे। यहाँ पर बने हैं हमारे साथ 10 प्रीमियर लीग के 4थे सीजन में। आशा करते हैं कि आप हर सीजन में हमारे साथ बने रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में हम एडिशन करें, चाहे हम यूएई में हम एडिशन करें। हम लोग आरिफ भाई के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आपका कीमती वक्त निकाला है और हमारे साथ बने हैं यहाँ पर 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 में। साथ ही साथ आरिफ भाई से भी 2 अल्फाज जानना चाहूँगा आसिफ शेख साहब के बारे में और साथ ही साथ इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में। आसिफ से मेरा काफ़ी साल से हमारी रिलेशंस है और हमेशा क्रिकेट से ही रिलेशन जर्नी हमारी शुरू हुई थी, और आसिफ काफ़ी पैशनेट है
और आसिफ का जो विजन और जो क्रिकेट चलाने का तरीका है वो एक मतलब जिस तरीके से 10PL सोचता है उसी तरीके से उसको बड़े प्रोजेक्ट्स पे एसोसिएट होना है। हमेशा वो लाइमलाइट और पेज 3 पे रहने वाला बंदा है, डिजिटल पे हर जगह पे, तो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सूट करते हैं। और उनके कप्तान साहब जो है कामरान खान, वो ऑलरेडी लाइमलाइट में है हर जगह पे। तो मेरे हिसाब से आसिफ के साथ हमारी जर्नी काफ़ी लंबी चलेगी और इंशाल्लाह जितने भी 10PL होंगे, चाहे इंडिया, दुबई, आसिफ एंड हिज टीम विल बी पार्ट ऑफ 10PL। जी हाँ, बिल्कुल आसिफ साहब से हम देखना चाहेंगे हिंदुस्तान में और दुबई में भी। जब हम जाएंगे शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर, आपको AB यूपीज वॉरियर हर संस्करण में मिलेगी वहां पर 10 प्रीमियर लीग के। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आसिफ साहब का और आरिफ भाई का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर आपको सीधा प्रसारण वहां पर कमेंट्री के लिए लाइव बैठे हैं सिद्दीक भाबे और उनका साथ देंगे अभिषेक शानू। बहुत शुक्रिया ओसम, बहुत ही शुक्रिया आसिफ शेख साहब, बहुत अच्छे ज़री ख्यालात थे। और शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ उर्फ आरिफ खान साहब। बहरहाल एक ओवर की समाप्ति गेंदबाजी की थी और जो तंबीरे ने बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी, कुल मिलाकर 4 रन दिए थे और खामोश रखा था अविनाश रामकुडे और तुषार रंदीवे को। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में दिल्ली की आवाज़ इस वक्त जुड़ चुकी है अभिषेक शानू, स्वागत है आपका। मैंने आवाज़ दी है तुम्हें नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। गिरीश को मोर्चे पे लगाया गया है, इस मरतबा पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं दूर से पहुंच रहे। बढ़िया रनिंग कैचेस विनिंग मैचेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक सर। लगातार पिछले कुछ समय से हमारे बीच बने हुए, लेकिन गिरीश की गेंदबाजी की दाद देनी पड़ेगी। इस गेंदबाज ने छुड़ाए हैं बल्लेबाजों के छक्के एक अलग अंदाज में। पिछले मैच में भी विकेटों का पंजा लिया था इन्होंने, 5 विकेट हासिल किए थे सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर के कोटे में, और इस मैच में विकेट का खाता खोल लिया है। विकेट का कॉलम जो है भरना स्टार्ट कर दिया इस गेंदबाज ने। बिल्कुल, गिरीश कोचरेकर कमाल के गेंदबाज हैं और बहुत ही अनुभवी है। कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। फाइपर, पिछले मैच में फाइपर लिया था उन्होंने, 5 विकेटें ली थी। ये देखिए, जो ऐसा लग रहा है कि अंपायर के अब टोपी में भी कैमरा लगा दिया गया है। ये देखिए, एक और आविष्कार टेक्निकल टीम का। ये 23वां कैमरा मैदान में आता हुआ जो अंपायर के टोपी में, हमारे लेग अंपायर के, मेन अंपायर की टोपी में नजर आ रहा है, अंपायर मोहम्मद रफ़ी के। गिरीश कोचरेकर कमाल की बॉलिंग की है 10PL में, विकेटों के सौदागर। सामना करेंगे नए बैट्समैन राहुल लोहार। काफी बड़ा लक्ष्य है ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग के सामने। राहुल लोहार सामना करते हुए गिरीश कोचरेकर का। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा स्विंग कर दिया है, विकेट एरिया है, गेंद निकल गई है वाइड स्मिट विकेट बाउंड्री के ऊपर। देखना अंपायर का क्या निर्णय आता है। ये देखिए, अंपायर का निर्णय अभी भी बाकी है और अब जाकर अपने स्टाइल में देते हुए सिक्सर। क्या बात है, कहावत है कि 100 सुनार की 1 लोहार की है, और ये देखिए सिक्सर लोहार की। कहते हैं ना कोचरेकर इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक है, बढ़िया फील्डिंग सर्कल में। क्या अब मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीमें अपने आप को झोंक रही है, क्योंकि ये है 10PL, मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10PL का दीवाना। यहाँ से दर्शक नहीं जाना चाहते तो टीमें कैसी जाएंगी।
जी हाँ, दर्शकों को किस कदर बांधे रखा है इस पूरे क्रिकेट प्रतियोगिता ने, खलबली मचाई है एक अलग अंदाज में। और वर्क प्रोसेस देखिए किस तरह से। प्रिंस मूवीज की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस स्तर के लाइव कवरेज को आप तक पहुंचाया है। और इस सब के बीच में लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत गवाही देता हुआ इस खूबसूरत से मोमेंट का। लगातार ये नजारे, दिलकश से नजारे, और इस बल्लेबाज के क्या ही कहने। कहते हैं ना कि खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू बता चाहिए क्या मुझ में। टैप कर दिया था हल्के हाथों से गेंद को डीप कवर में, गैप में, एक रन बनता हुआ। पलटवार किया कोचरेकर ने। इससे पहली वाली गेंद धीमी की थी। स्कोर ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग का 11 रन 1 विकेट। दूसरा ओवर है उनके सामने, हिमालय के पहाड़ की तरह स्कोर है 96 रन। गिरीश अनुभव का भंडार, एक्सपीरियंस का भंडार है गिरीश कोचरेकर। जी हाँ बिल्कुल। और सामना करेंगे इस मरतबा इनसाइड आउट, कमाल का शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर 6 रन। गिरीश ने जितनी अच्छी गेंदबाजी की, दाद देनी होगी उस बल्लेबाज की। अगर आपने तालियां नहीं बजाई, अगर आपने वाहवाही नहीं दी इस बल्लेबाज के शॉट के ऊपर, तो क्या कहने। तुषार रणदीवे ने शॉट खेला था। इस ओवर में 2 सिक्सर आए। पहला राहुल लोहार ने लगाया और अब रणदीवे ने। रणदीवे रन दे नहीं रहे, रन ले रहे। भले से उनकी सरनेम रणदीवे, लेकिन वो रन ले रहे। 2 ओवर की समाप्ति, पलटवार होता हुआ यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग का कुल मिलाकर 17 रन 1 विकेट 96 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 10 PL वो फॉर्मेट जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहे, दुनिया का हर दर्शक। ये देखिए एलेंट हमारी टेक्निकल टीम के चीफ रवि गुलवी को दिखाया जा रहा था। खेल की शुरुआत हो रही है। अब बचे हुए 6 ओवर में यहाँ से कुल मिलाकर 89 रन चाहिए। मुश्किल काम, लेकिन कहते हैं कि बाजीगर खिलाड़ी वहीं रहते हैं जो मुश्किल चुनौती को स्वीकार करते हैं। दबाव हमेशा रहता है, जो भी दबाव को झेलेगा वहीं खेलेगा। जी हाँ बिल्कुल। इस बीच इस मर्तबा देखिए, और इससे पहले टॉस अपडेट आप सबके बीच परोसूं तो ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी। आमंत्रण मिला था इंटर ग्लोब मरीन को, और अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक बहुत बड़ा सा विशाल काय लक्ष्य यहाँ पे, और ढाहनी पड़ेगी पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह खोद कर निकालनी पड़ेगी वहां से। पर जो तंबीरे अच्छा ट्राई, मिड ऑफ सर्कल में गेंद निकल जाएंगी लॉन्ग ऑफ की तरफ। बढ़िया फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर से आते हुए खिलाड़ी की 2 रन। मखमली घास पे गेंद 30 पहुंची थी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, 2 रन से 19 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग का। ओवर नंबर 3 चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं नॉर्थ एंड, जो कि हमारा फार एंड है, दूर वाला छोर है, पर जो तंबीर है। पट्टी हुई गेंद मिस की, हुक शॉट है, नहीं कैरी होंगी। अब जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आए हैं। 1 रन। एक सवाल है और जल्दी में आपसे मैं जवाब चाहूँगा। मेरा अपना मानना है कि जितने दाएं हाथ के गेंदबाज खेले 10 PL में, बराबर उतने ही बाएं हाथ के भी खेले। जी हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है बाएं हाथ के गेंदबाज ही ज्यादा नजर आए और चले भी बहुत हैं। और टॉप परफॉर्मेंस उनसे ही देखने को मिली है। फिलहाल 96 को चेस करने के लिए टीम निकली है, और अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? पावर प्ले का तो लाभ उठाया इन्होंने। इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, गेंद की लाइन के अंदर आके खेले, गेंद विकेट कीपर के पास। तुषार रणदीवे भी देखिए, इस तरह के जो टोटर रहते हैं वहाँ आप सांस लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते, दम नहीं ले सकते। ये हो सकता है कि आपको गेंदबाजी का दम निकालना चाहिए। ये तमाम हमारे ऑडियंस जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
देर शाम सूरत की खूबसूरत शाम में इस मरतबा हल्के से गेंद को टैप कर दिया, कवर में 1 रन। वाकई में ऐसा लगता है कि सूरत में जब शाम ढलती है तो वो खूबसूरत हो जाती है। 10 PL जब सूरत में हो रहा है और लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम की शाम तो और भी हसीन और खूबसूरत है। 20 रन 1 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रोजोत अंबीरे। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, लेकिन पीछे फील्डर भी जबरदस्त है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी जबरदस्त। क्या मैदान में क्रिकेट हो रहा है, ऑलराउंड क्रिकेट। स्कोर 22 पे पहुंचा है। 1 विकेट गंवाने के बाद तीसरा ओवर चल रहा है। थर्ड ओवर इन तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। रन बने 22। ये देखिए एक फैमिली मैच का मजा ले रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। क्रिकेट है, इससे दूर बहुत कम रहा जा सकता है। वाकई में सूरत वासियों के लिए मैं कहूँगा इनकी शामें बड़ी खूबसूरत रहती है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं भी एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे, और तुम्हारे बस में अगर है तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। ये दूसरी फैमिली हमारे भाइयों से क्रिकेट का मज़ा ले रही है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। स्टैंड में भी एक फैमिली बैठी है, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये ऑडियंस रेलिंग पे बैठ के मज़ा ले रही है। ये देखिए स्टैंड में एक फैमिली को दिखाया जा रहा है, वेलकम। ये देखिए हमारे तमाम ऑडियंस इस वक्त बाईं ओर से मैच का मज़ा ले रहे हैं। 3 ओवर कुल मिलाकर रन बने केवल 23, विकेट गिरा है 1। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को रन के लिए जाना होगा, वरना कठिनाइयाँ आ सकती है। इंटर ग्लोब मरीन के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक ताल्लुक है। पहली गेंद स्विंग एंड मिस, ब्लाइंड स्विंग। आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके स्विंग किया था, और आंखें बंद करके सिर्फ आप ख्वाब या सपना देख सकते हैं, क्रिकेट नहीं खेल सकते। फुटवर्क भी साथ नहीं दे रहा था। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। ये नन्ही बच्ची को दिखाया जा रहा है। ये देखिए मासूम चेहरा। इस बीच शॉर्ट आर्म पुल खींच के मारा है, एलिवेशन नहीं है। शॉट के पीछे खेलना चाहते थे, मिड विकेट पे गेंद चलेगी वाइडिश लॉन्ग ऑन पे। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट। तो चौथे ओवर के इस खेल में अभी तक बड़े दिलचस्प नज़ारे हमने देखे हैं, कई सारे ऐसे दृश्य देखे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको भी सुकून महसूस होगा। और ये देखिए, ये स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो नज़ारे देख रहे हैं, ये और कभी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आप उन तमाम चीज़ों को समेटे हुए वापस से आ जाइए एक बार फिर से सूरत के इस खूबसूरत से स्टेडियम में। जो सफर कल थमेगा, कल ग्रैंड फिनाले भी है, तो कल के मैच में भी जरूर आइए। ये देखिए लगातार सारे दर्शक, और टिकट फ्री इवेंट है ये। तो यहाँ पर आप भी अपने घरों से निकलिए, आइए दफ्तरों से निकलिए, आइए। आपका मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। बढ़िया गेंद। देखिए 10 PL के बारे में एक ही बात कहूँगा, 10 PL। व्हाट्सएप पे 10 PL, फेसबुक पे 10 PL, इंस्टाग्राम पे 10 PL, यूट्यूब पे 10 PL, होटल में 10 PL, बाग में 10 PL, पार्क में 10 PL, ऑफिस में 10 PL, बिजनेस की जगहों पे 10 PL, 10 PL, 10 PL, 10 PL, हर जगह 10 PL। इसीलिए मौसम है सुहाना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। लेग कटर गेंद से परेशान कर रखा है रणदीप को। बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त शरफुद्दीन, जिन्होंने कल मुझे बताया गया था कि मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2021 में खेला था। शरफुद्दीन ने कमाल की लेग कटर गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल अब होता हुआ लक्ष्य यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। शरफुद्दीन की गेंद ऊपर लगी है,
बढ़िया फील्डिंग, अपने टीम के लिए लगभग 3 रन बचाए शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने। एक और फैमिली हमारी 10 PL को स्टैंड से देखती हुई। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 26। आकार चैन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ, और क्या पलटवार करके इस मुकाबले को जीतेंगी यहाँ पर टीम ग्लोबल लिंक वेस्ट स्टार। आइए सुनते हैं। बॉस टेक्सटिंग देना। एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। चला चला चला, एक मॅच जवानो. आइटम ओवर. जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। कांटे की टक्कर ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग बनाम इंटर ग्लोब मरीन के बीच में विशाल लक्ष्य खड़ा किया गया है 96 रन का। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बाहरी किनारा, विकेट कीपर खुद आएंगे नीचे और एक थोड़ा सा फंबल हुए। अद्भुत कैच, अविश्वसनीय कैच। ये टैलेंट आपको देखने को मिलेगा, ये नजारा आपको देखने को मिलेगा केवल 10 प्रीमियर लीग में। इसे कहते हैं हम साथ साथ है कैच। तालियां। वाओ, क्या ये कैच था। ये कैच बना है, ये मैच बना है। Osama, that's a very much important breakthrough for team Interglobe Marine. आप देख रहे हैं जाइंट स्क्रीन पर श्रेयस कदम, अब है प्रज्योत। और 10 PL सीजन 4 में ओसामा ये चौथा दिन है और आ चुके हैं सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज टीम ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के बबलू, यानी कि संभाजी पाटिल। जी हाँ, 2 विकेटें अभी तक गवा चुकी है। बबलू पाटिल आए हैं, जाने जाते हैं बड़े इनिंग्स के लिए, जाने जाते हैं बड़े शॉट्स के लिए। दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है। बढ़िया शॉट था, स्ट्रेट ऑफ द मार्क। 1 रन के साथ अपने खाते की शुरुआत की है बबलू पाटिल ने। क्या कहने इस नज़ारों के, नन्हे मुन्ने नौजवान छोटी लड़की को वहां पर उनके
कलर के हिसाब से, जो कि आमतौर पर लड़कियों का कलर होता है, फेवरेट कलर पिंक कलर, हर किस्म की यहाँ पर मर्चेंडाइज तैयार की गई है। अभिजीत लो फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, अद्भुत शॉट, गैप ढूंढने में कामयाब, एक और चौका लगता हुआ, बढ़िया शॉट इस बार राहुल लोहार का। देखिए लक्ष्य तो बड़ा ही विशाल खड़ा किया गया है इंटर ग्लोब मरीन के आगे। जैसी बल्लेबाजी हुई है ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग की, मानो जैसे लग रहा है कि शायद यहां से मैच अपने पक्ष में कर पाएगी, लेकिन जब तक बबलू पाटिल, जब तक राहुल लोहार की जोड़ी वहां पर क्रीज पर मौजूद, ये भली बात ही समझते हैं गेंद किस हिसाब से वहां पर रुख कर रही है, किस हिसाब से बिहेव कर रही है। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर देखिए सनवीर भाई प्रेजेंट कर रहे हैं इस कैप को। ताहा जोरदार हाई कर रहे हैं सबको। ताहा हमारे जाबिर भाई के बेटे हैं और इस बीच मिस टाइम ये शॉट, एक रन जरूर मिलेगा। उसामा जिस तरह से रन चेज शुरू हो चुका है, इट इज लुकिंग लाइक दिस विल बी एन इवनली पॉइज्ड मैच। जी हाँ बिल्कुल, लक्ष्य बड़ा है, जितने रन होने चाहिए थे अभी तक बोर्ड पर उतने लगे नहीं हैं। एक जीतोड़ मेहनत जरूर जारी है वहां पर राहुल लोहार की तरफ से, लेकिन बबलू पाटिल जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो चीज, वो कारनामा करना होगा यहाँ पर यदि उनको लक्ष्य चेस करना है। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। अनिकेत रावत कप्तान है ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग के, खुश होंगे आज जिस हिसाब से स्कोर लगाया है इनके बल्लेबाजों ने बोर्ड पर। क्या नजारा, क्या दृश्य लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में आप देख सकते हैं। 20 मिनट अभी भी शेष इस पारी को समेटने के लिए। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, हवा में गेंद जरूर है, क्या फील्डर उस तक पहुंच पाएंगे? जी हाँ पहुंचेंगे भी और लेंगे भी। बड़ी विकेट, बड़ी मछली को जाल में फंसा है, बबलू पाटिल को चलता किया है इस बार। Yeah, that was a good catch taken by Sarfuddin और ये आता हुआ आकार चेंज, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू मिलता हुआ IGM यानी इंटर ग्लोब मरीन को। जायंट स्क्रीन पर लगातार फैन कैम चल रहा है। संभाजी पाटिल अपने आप से नाराज, एक ऐसा क्षण जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। 32 पर 3 5 ओवर के बाद और इसके बाद का मुकाबला जिसके लिए तैयार है पूरे स्टेडियम में हमारे सभी फैंस। नेक्स्ट मैच वलसाड स्ट्राइकर्स वर्सेस एबीज वॉरियर्स। रिक्वायर्ड रन रेट है 21.03 का। क्या लगता है अभिजीत, यहाँ से इस मुकाबले को जीत पाएगी ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग या फिर अपनी जीत का झंडा गाड़ने में कामयाब होगी इंटर ग्लोब मरीन? It will be a very difficult challenge for team ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। जिस तरह से 5 ओवर का खेल रहा है, बचे हुए 3 ओवर में they have a huge mountain to climb। बढ़िया शॉट इसी बीच मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से, सबसे बड़ा छक्का आज का मैं कहूंगा। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे 21 की रन प्रति ओवर के हिसाब से औसत से रन आने चाहिए यहाँ पर, उसी के चलते इतनी बढ़िया शुरुआत दी है
इस ओवर को 6 रन से स्वागत किया है वहां पर शरफुद्दीन का। बाहरी किनारा इस बार निश्चित रूप से 1 रन जरूर मिलेगा। यदि बबलू पाटिल अगर क्रीज पर इस बार टिके होते राहुल के साथ तो शायद थोड़ा सा सीन वहां पर, शायद थोड़ा सा दृश्य कुछ अलग होता, क्योंकि बबलू पाटिल बड़े छक्के और चौके लगाने के लिए माहिर। उसके साथ यदि राहुल लोहार जुड़ जाते तो सोने पे सुहागा होता वहां पर ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग के लिए। लेकिन इस बीच सौरभ आए हैं। लो फुल टॉस गेंद, फील्डर उसके नीचे मौजूद। एक और कैच, एक और झटका। श्रेयस विद्याधर कदम अपने हाथ में उस गेंद को पकड़कर वापस चलता गया है पहली गेंद पर। पंद्रह मिनट शेष इस इनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग बनाम इंटर ग्लोब मरीन। जी हाँ, दर्शकों से खचाखच भरा मैदान, हर जगह दर्शक नजर आते हुए। पार्किंग लॉट में भी आप देख लें, स्टेडियम पर, यहाँ पर स्टैंड्स में भी आप देख लें, दर्शकों से भरा मैदान। और होगा भी क्यों नहीं, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नाम लिखने वाला यह ऐतिहासिक SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का यहाँ पर मजा लेते हुए। बाहर जाती हुई गेंद को 1 रन के लिए खेल दिया है। देखिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब बचे हुए इस खेल में तकरीबन 56 रनों की आवश्यकता है। लो फुल टॉस गेंद एक बार फिर से उसी दिशा में, उसी फील्डर के हाथ में। श्रेयस विद्याधर कदम एक और बार, इस बार बड़ी मछली राहुल लोहार को चलता किया। वो जो आखिरी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी इंटर ग्लोब मरीन ने, उसको भी वापस चलता किया है ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग। थोड़ी सी यहाँ पर डगमगाती हुई इनकी कश्ती समंदर की लहरों से जूझती हुई। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, और लगाना भी चाहिए क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है। चाहे वो लो फुल टॉस गेंद हो, जूसी फुल टॉस गेंद हो, छोटी गेंद हो या फिर हाफ वॉली, आपको हर गेंद पर प्रहार जरूरी है यहाँ, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 25 से भी ऊपर जाता हुआ। विकेट के नाम से आप देख सकते हैं नजारा। लो फुल टॉस गेंद को दिशा दिखाई लामा के क्षेत्र में तेजी के साथ दूसरा रन लेना चाहते हैं वहां, और पूरा भी करने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया रनिंग मैं कहूंगा। तालमेल बहुत ही सटीक यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। एक छोर पर आसिफ शेख तो दूसरी छोर पर हैं सचिन। यस, देखिए अगला मुकाबला एबीज यूपी वॉरियर्स बनाम हमारी घरेलू टीम वलसाड स्ट्राइकर्स। और ये है द लिटिल चैंप, जिन्होंने स्टेडियम में सभी को आकर्षित किया है। और उनकी छोटी बहन आ गए हैं भाई बहन 10PL सीजन 4 को एंजॉय करने, और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। IGM यानी कि इंटर ग्लोब मरीन, ध्यान रखिए
सिर्फ 12 मिनट आपके पास बचे हैं, इसमें 2 ओवर करने। अनिकेत ओनली 12 मिनट्स टू गो, थोड़ा जल्दी करना है। देखिए ये सारी ऑडियंस, कल होगा महामुकाबला। जी हाँ, कल होगा सुपर संडे और उस संडे को फंडे में बदलेंगे यहाँ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में। उत्साह अभी से नजर आता हुआ सूरत के दर्शकों में, उत्साह जरूर रहेगा पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों में, क्योंकि एक ऐसी प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले कल आप देखेंगे। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, लेकिन फिर वहां पे फील्डर एक बार फिर से वहां पर चलता किया है बल्लेबाज को। आसिफ शेख की इस बार विकेट ली है। कल जितनी तादाद में, जितनी संख्या में आप जुड़ सकते हैं, उतनी संख्या में जुड़िएगा हमारे साथ। सीधा प्रसारण लेके आएंगे आपको कल सुबह से लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में। आखिरी दिन SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग 14 संस्करण का मेगा फिनाले, ग्रैंड फिनाले। अपनी ऑफिसों के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नन्हे मुन्ने खिलाड़ी, लिटिल चैंप। चलिए बढ़ते हैं मैच की ओर। 7वां ओवर चलता हुआ 42 पर 6 ग्लोबल लिंक विद स्टारशिपिंग। छोटी गेंद पुल करना चाहते हैं, बाहरी किनारा, थोड़े से वहां पर फंबल हुए फील्डर और गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। आते ही अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया है विशाल निगोट ने। 4 रन के साथ अपना खाता खोला। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन वहां पर हासिल किए हैं। इस बीच एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर नन्हे खिलाड़ी, लिटिल चैंप, बाहरी किनारा, एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ। विजेता हैं यहाँ पर 10 प्रीमियर लीग पेट्रोमैन की ओर से मर्चेंडाइज के 2 कैप्स वहां पर मिलेंगे नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों को। नन्हे मुन्ने इस हिंदुस्तान के भविष्य को। भरत लोहार काफी खुश होंगे जरूर। दोनों को वैसे ही क्वालिफाई के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पर जगह नहीं बची है अभिजीत जहाँ पर कैमरामैन ने दर्शकों को कवर ना किया हो, चाहे वो स्टेडियम के बाहर बैरिकेड्स पर हो, चाहे वो यहाँ पर स्टैंड्स पर मौजूद हो, चाहे वो देखिए यहाँ पर फैमिलीज के साथ आकर भी इस प्रतियोगिता का मजा लेते हुए। ऐसा पारिवारिक माहौल है और आज भी कई परिवार जुड़ चुके हैं। देखिए हमारे देश का उज्जवल भविष्य, हमारे होनहार नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है। भारत का भविष्य इन नन्हे मुन्ने बच्चों में। स्कोर इज 46-7। फैन कैम चलता रहेगा हर एक जगह जहां पर आप अपने आप को देख सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं। लेकिन अब स्क्रीन पर हैं टीम के मेंटोर मिस्टर भरत लोहार सर। बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर से प्रयास, फील्डर आएंगे उसके नीचे और एक और विकेट मिलेगी। ओमकार देसाई ने इस बार कैच लिया है। 8वीं सफलता मिलती हुई इंटरग्लोब मरीन को।
So that was another wicket. यहाँ पर हालातें बद से बदतर हो रही हैं ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के लिए। बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस तरह की परफॉर्मेंस, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इस ओवर में मुसद्दीक यानी कि मूसू को मिला है तीसरा विकेट। 3 विकेट अपने नाम पर कर चुके हैं केवल 4 रन देकर। यहाँ बहुत ही बढ़िया ओवर साबित हुआ है। 3 सफलताएं एक चौके के साथ इस ओवर में मिली है मुसद्दिक शेख को। देखिए काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है ग्रुप सी के पॉइंट टेबल पर। अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग अभी तक दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन जब ये मुकाबला मुकम्मल हो जाएगा तो शायद वहाँ से नीचे सरकने का भी अंदेशा है। लेकिन बहुत अच्छी बात रहेगी इंटर ग्लोब मरीन के लिए, जो कि 3 मैचेस में 1 मैच जीती है। ये चौथा मुकाबला रहेगा उनका, लेकिन नेट रन रेट की काफ़ी वहाँ पर घमासान रहेगी अभिजीत। बिल्कुल घमासान ज़रूर होगा। फैन कैम्प से सभी को हम कहना चाहते हैं आइए स्टेडियम में और आनंद लीजिए इस 10 PL सीजन 4 का। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 पर 8 चाय का मजा ले रहे हैं हमारे ये फैन कैंप में सभी आकर्षित हो रहे हैं। यस बेटा आपकी तरफ आ रहा है कैंप, हाय कीजिए। हाँ इंग्लिश वाला है इज ऑलवेज इफेक्टिव। और क्या बात है भाई साहब, ये हैं सारे सूरत के फैंस जो आज आ चुके हैं स्टेडियम में और अब तैयार हैं एबीज यूपी वॉरियर्स, जहां एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जाइंट स्क्रीन पर और एक परिवार जुड़ता हुआ। वेलकम, स्वागत है आपका लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम के इस शानदार शनिवार में। कामरान खान एबीज यूपीज वॉरियर के टॉस जरूर हारा है इन्होंने, लेकिन मैच जीतने का पूरा जोश लेकर आएंगे अगले मैच में। एक बार फिर से हवा में गेंद, एक बार फिर से जाना होगा वापस। मुझे ऐसा लग रहा है अभिजीत कि मैं मैच नहीं यहाँ पर हाईलाइट देख रहा हूँ। एक के बाद एक विकेट जाती ही जा रही है यहाँ ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग की। केवल 1 विकेट बची है, इसके बाद इंटर ग्लोब मरीन अपना परचम लहराएगी जीत का। Yes, now Akshay is ready with another delivery. First ball, first wicket for Akshay. They have lost 9 wickets here. Usama रन रेट पर नजर डालिएगा, 58 का रन रेट है। क्या स्थिति होगी, कैसे मुमकिन कर पाएंगे आप इस 58 के रन रेट को अभिजीत? ये तो गूगल करना पड़ेगा कैसे बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह से एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा, नेट रन रेट बहुत क्रूशियल रहेगा टीम ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के लिए, बिकॉज टॉप 2 टीमें हर ग्रुप से चली जाएगी नॉकआउट यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में, और बचे हुए टीमों में जिनका सबसे बेस्ट रहेगा एनआरआर, वो जाएंगे टॉप 8 टीम्स में। या बिल्कुल, युद्ध तो जरूर छिड़ा होगा वहां पर पॉइंट्स टेबल में। साथ ही साथ में एक सूचना दे दूं सभी दर्शकों को जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यदि आप इसकी विजुअल्स चाहते हैं अपने मोबाइल में तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप इसे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जाइएगा 10 PL क्रिकेट YouTube चैनल के थ्रू, जहां पर आपको हर मैच यहां पर लाइव सीधा प्रसारण दिखाया गया है जब से ये प्रतियोगिता शुरुआत की है तब से लेकर के आज तक, और कल भी। ये देखिए बहुत ही दबंग दर्शक है हमारे। आखिरी विकेट, 4 गेंदे, ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग की शिप डूबती हुई।
ऑप्शन के बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। मोहम्मद रफी AK-47 दोनों हाथों में लिए हुए अपने ही अंदाज में वाइड का इशारा देते हुए पूरे दृश्य को यहां पर कैप्चर करते हुए अपने मोबाइल्स में दर्शक। रिवर्स स्विप, वो हो क्या कहने, क्या शॉट दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। थैंक यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसामा, जिस तरह से आपके पॉइंट्स फैक्टर विल बी द फर्स्ट फैक्टर टू बी इन टॉप 8 एंड अगर पॉइंट्स फैक्टर आर इक्वल देन द सेकंड फैक्टर विल बी द नेट रन रेट फैक्टर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मैच को जीतना, पॉइंट्स लाना। अगर पॉइंट्स बराबर पर रहे तो दैट नेट रन रेट विल बी एन इंपॉर्टेंट रोल। जी हाँ, इंटर ग्लोब मरीन का आप नेट रन रेट देखें तो -3.490 के साथ वो चल रही है और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहेगा ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग को। यदि यहाँ से 2-3 पॉइंट्रीज और लगाती है तो वो बहुत ही क्लोज एनकाउंटर रहेगा। नेट रन रेट में भी नेगेटिव रहेगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा क्लोज मार्जिन वहां पर मैं समझूंगा। दीपक दादा प्रतिष्ठान ने तो अपनी जगह बना ली है ऑलमोस्ट। चौका लगता हुआ बाहर के जाती हुई गेंद, बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर से प्रयास, कोई मौका नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। हर कोई आज इस शनिवार की शाम शनिवार की रात 10PL क्रिकेट के साथ लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर सूरत में। वाइड अंपायर का इशारा, थोड़े से हैरान परेशान। मैं बताता चलूं अनिकेत रावत, टाइम इज अप, जल्दी कीजिए। लाइन से बाहर है बिल्कुल सर। ये वाइड के वो वाइड है उसके बाद चलिए चलो। एक बार फिर से घुमाया, जरूर इतनी तेजी के साथ घुमाया कि लगती तो गेंद शायद सूरत के बाहर होती, लेकिन लगी नहीं है वहां। आखिरी गेंद तूफान से जूझती हुई ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग, इंटर ग्लोब मरीन का तूफान सर चढ़कर बोलता हुआ आज। चौका जरूर बटोरा है लेकिन मैच को यहां पर खोया है ग्लोबल लिंक स्टार शिपिंग ने, और अपनी जीत का परचम लहराती हुई इंटर ग्लोब मरीन अपनी जीत दर्ज करती हुई